Hello students, good morning all. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning students. Good morning guys. So how was the Good test morning, yesterday? sir. So physics was Physics was tough. Not tough, but some medium था. medium. Which was the toughest? Capable of doing, sir. Oh, which was the Maths was the tough. maths was the toughest. Yeah, okay. And second, second physics क्या था? Second physics Vartik. Yes, Morning. sir. Chemistry was easy, sir. Chemistry was easy. Okay. Okay. And mains? So mains was तो easy. था. Mains तो Sir easy. बहुत easy आया था physics तो. Mains का okay था. Okay. Okay. So you're starting with the rotational. Today we'll start with rotation. Okay, guys. So, Sir, this is the last topic of the mechanics, right? mechanics का gravitation भी रहेगा. Gravitation is also there. Okay, it is also considered under that classical mechanics. Right? Yes. So guys, yes. Good morning. Students have not joined yet. All. So कल सबने एमपी दिया ना तो सब लोग शायद अभी रेस्ट ले रहे हैं. Oh. Okay. ठीक है. We'll wait. क्या? सर एमटीओ Yes, पेपर sir. आप सेट करते 2 हो क्या? minutes we'll wait. Okay. What Raga? What you are saying? का पेपर सर से कौन एमटी सेट का करता पेपर है? आप सेट करते हो? No. मतलब वो तो randomly किसी को भी I mean they give. तो papers collect करते हैं they collect. फिर they file. सर कलेक्ट नहीं सेट पूछ रहा है. सेट कौन करता है? ओह नहीं वो तो पेपर जो डिपार्टमेंट है ना वो लोग करते हैं. Sir, is it like each this thing, each question like that, sir? Like yes, faculty they give questions, and from the set of questions, जो है the paper They'll department select. they select it. Okay, sir. और हमारा 11th का सिलेबस कब खत्म होगा? 11th is big. 11th जो बड़ा है ना तो ऐसे ही लास्ट ईयर का भी ऐसी था. 11th में थोड़ा 11th में भी जो है थोड़ा सा काफी ये टाइम लग जाता है. But don't worry, ओवरऑल सिलेबस तो जैसे सीनियर्स का हो गया, रिवीजन भी हो गया उनका. Sir, in the module 4, it is written as twice, sir. ओह नहीं, don't worry about the syllabus. जैसे हर साल हम लास्ट 20 years से तो सबका वैसे ही हो रहा है. सेम टाइमिंग जैसे चल रहा है प्लानिंग वही प्लान पे चल रहा है yours also. So भाई कभी कितने चैप्टर्स तो बाकी सर होंगे फेब में पूरा कंप्लीट हो पोर्शन? जाएगा? Which one? नहीं आप लोग उसके बारे में मत सोचो कि जैसे कब रहेगा टाइमिंग का. डोंट वरी अबाउट दैट. वो तो प्लानिंग जो है 20 years से तो देख ही रहा है ना. तो आप लोग तो उसमें आगे ही हो, लास्ट ईयर से भी आगे हो तो चलेगा. हाँ. और सर हमारा 11th का खत्म होने के बाद हमें हॉलीडे मिलेगा? हॉलीडे नहीं मिल रहा. Sir, I guess a week, sir. नहीं इतना क्या एक वीक कौन देगा? मतलब If लास्ट you ईयर दिया don't था get मई में. Christmas holiday, do you expect a vacation? नो. वो तो एक बार उनसे पूछना होगा आई गेस. चलो ठीक है. सो गाइस ठीक है, विल स्टार्ट. से रोटेशन रिजिड बॉडी. So rigid body, non-deformable body. So non-deformable body. Okay, guys. So let's say if we mark 2 points on the rigid body, A and B. So guys, if we mark 2 points on the body, तो क्या होगा? उनके बीच का distance Constant. constant रहेगा. Okay. Yes, sir. So if we mark 2 points on the rigid body, उनके बीच का distance is constant. Now,
जैसे suppose this point has velocity in this direction, some VA. This angle is theta A, and इसका इस side कुछ है, say VB and theta B. So velocities क्या हो जाएगा इस यहाँ पर, VB Along the line same. cos theta B and VB sin theta B. Similarly ये वाला क्या आ जाएगा, VA cos theta A, और इधर क्या आ जाएगा, VA sin theta A. हाँ, so guys rigid body से क्या, what you will say? The rigid body constraint Sir, बोलेगा both the कि VA velocity cos should be theta equal. is equal to VP cos theta B. Okay, That VA is when along. it is not rotating and spinning. No, abhi we don't have to worry. We are just given the points. Velocity is given है. So line जो है AB distance constant रहना है. This distance AB is constant. If distance Sir, AB so is, same velocity. yes, so distance constant रहेगा, मतलब VA along line joining them और VB along line joining them, दोनों की velocities क्या हो जाएंगी, equal. So we'll say VA cos theta A, VB cos theta B. Correct guys? So that means जो है अगर A के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो B की velocity can it be along the line joining them? A के रेस्पेक्ट में B की velocity इसके line joining them में हो ही नहीं सकती ना, right? Along the line joining them जो है with respect to A, B cannot have any velocity, right guys? Yes, sir. Yes. Why sir. Ruchir? Why it cannot have, Ruchir? So because they have the same velocity, so the relatively B will appear to be stationary to A. Yes. Or we can also say भाई it's a rigid body, तो उनके बीच का distance constant रहेगा. So भाई distance constant है, अगर along the line joining them कोई velocity आ गई, तो that means distance increase या decrease होगा. So it violates the definition of its rigidity, correct now? So, but like it will be relative. Relative will be zero only along the line now. Relative will be zero along the line joining them, correct Chaitanya? Yes, sir. Okay, so relative velocity along the line joining them जो है zero होगा. So that means अभी relative, हाँ, relative velocity along the line joining them is zero होगा इसके long, because इसके long velocity आ गई, that means A के respect में B इधर दूर जा रहा है या पास आ रहा है, तो उसके तो that means in that situation this distance is changing, तो उसके rigidity को violate करेगा, right? Correct ना, Tanish? Yes, sir. Okay, so along the line joining them velocity नहीं हो सकता. So that means So 1 minute. this one. Sir, एक I मिनट, got the screenshot, sir. Oh, this you have to write. Okay, जल्दी करो, copy करो. This is just old rigid body definition, I think. Rigid body. Pranjay, Yes, sir. this one understood now? Yeah, sir. Here you have applied resolution of vector. हाँ हाँ, मतलब velocity को जो है अपन ने सीमांत we have resolved VA cos theta जो resolution से, yes, VA cos theta VB cos sin, ना cos and sin. This one done guys, ये वाला copy. Yes, sir. Yes. तो अब जो है, so that means with respect to A, B cannot have any velocity
along line joining them. Along line joining them. Therefore, if B has any velocity with respect to A, then it has to be perpendicular to line joining them. Guys, is this correct? Yes, sir. So all the velocity will come from only the perpendicular direction. Okay, so that means relative velocity अगर along the line joining them नहीं है तो बचा दूसरा direction कौन सा? Perpendicular. Correct ना? Yes, sir. So perpendicular to line joining them. So जैसे मान लो suppose ये वाला कुछ A है ऐसा and ये वाला B है ऐसा. So like circular motion, it can't have radial. No, 1 minute. So that means relative velocity इधर ही होगी. B relative B, ना? So velocity of B with respect to A इसी direction में होगा. So that means Sir, B के respect में A का motion कैसा होगा? perpendicular. हाँ. How will you classify this motion? Tangential, Sir, right? Circular motion. Tangent. Circular. So circular motion. So Sir, it is compulsory that it will always be perpendicular. Yes, because there is, relative to A, there is like we can't have any velocity in radial. Yes. Like small theta is not okay for it. correct now? Circular, if any. Sir, but A is also having perpendicular to that velocity, right? So we have No. But No, it is no. relative It's now. With respect to A. Rel, Okay. rel लिखा है. हाँ, relative. Okay, so Sir, that means is there any possibility that both the magnitude will be equal, sir? no. That possibility we'll discuss. First, this one is okay. That means along the line joining them, there is no velocity. So if there is velocity, it has to be perpendicular to the line joining them. So which implies that motion of B with respect to A is circular, if any, right? Yes, sir. So, okay. If any and- means if there is, no? Yes, if there is. Yes. Okay, if there is, you want me to write. Okay. I was going to ask what does if any mean? Okay, if there is. So that means अब जैसे आपके पास ये वाला था. So 1 minute, the last line. Oh. Done, sir. Done this one. Sir, Done. if Sir, done. So now, लिखना है. oh, So why? No. Sir, that is RAB, no? yes, yeah. This is the distance separation between A and B. Yes, RAB. Sir, why B cannot have any value? I'm not understanding properly. AB doesn't B. have to change. So the velocity of A and B along that line RAB has to be the same so that AB doesn't change. And if that happens, that means with respect to A, B has no velocity in that direction. Yeah, that is, but I think you use the term thoda galat. Like the velocities may or may not be constant, but the relative velocities will always be zero. It may be accelerating, not accelerating. That we will. Did I use acceleration by mistake? I didn't. No, you you used K. The velocities along the line will not change. हाँ, So you No, used absolute. I meant that they have to be the same. देखो प्रांजय, अरे हाँ ऐसे करो ना, रिजिड बॉडी है तो इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा प्रांजय. Constant रहेगा.
I didn't ask. I got it. है ना? Any 2 points. So any 2 points, the distance between them will be constant, correct? Yes. So distance constant रहेगा मतलब along the line joining them relative velocity 0 होगी, right? Sir, so there is an attractive force between A and B, sir. No. अभी force क्या है, कैसे आया, क्यों आया, that is not our interest. हम तो बस इस definition से जा रहे हैं. ये definition rigidity का ये definition AB को constant show करता है कि नहीं करता? Constant, sir. If this is constant, that means along the line joining them velocity is relative velocity is 0, मतलब velocity is equal. Okay, sir. हाँ. Sir, but I just wanted to know that But is here- there any force which is perpendicular to that relative velocity, sir? No. Where is the force? Who is applying? That all we'll discuss in the dynamics part. अभी तो simple kinematics का constraints देख रहे हैं. Oh, So, kind sir, of- sir, here only relative velocity will be 0, not velocity, like initial and final velocity. हाँ नहीं, velocities तो हैं ही point A and B का. Relative velocity along the line joining them वो 0 होगा. अच्छा, okay. क्योंकि otherwise वो 0 नहीं है तो rigidity word को जो है वो fail हो जा रहा है ना वहाँ पर rigidity word. मतलब violate कर रहा है. Yes, rigid मतलब दोनों के बीच का distance constant रहना चाहिए, right? Sir, but if it is 0, Yes, then sir. why in the perpendicular direction we are taking? It's 0 Hey. along the line of AB. That means if there is any velocity that B has with respect to A, it will be in the perpendicular direction. Correct. हाँ. तो जैसे ये था. Sir, 1 second, previous slide. हाँ, एक मिनट जाओ. जैसे हमारे पास A and B था, है ना? This was B, this was A. अब जो है इसकी वेलोसिटीज क्या आई? ऐसे और ऐसे आई. VA cos थीटा A और ये वाला आ गया VB cos थीटा. नहीं, ये कितना आया था? VB cos थीटा B VB cos हाँ सर. theta. Yes, sir. और VB sin थीटा B और ये वाला VA sin थीटा A. तो अब ये और ये इक्वल है, राइट? Yes, sir. अब विथ रेस्पेक्ट टू ए देखना है. सो विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा आपको? विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब जो है ए का नेगेटिव्स पूरा ऐड करना है और ये दोनों इक्वल है तो ये हट जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी में, सिर्फ ये बचेगा परपेंडिकुलर वाला. दिस इज आर ए बी मतलब सेपरेशन ए बी. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? दोनों का सेम है भाई. VB sin थीटा B minus VA sin थीटा A. Correct, guys? Yes. Yes, sir. Okay, so that means A के रेस्पेक्ट में ओमेगा क्या होगा? All that divided by R, RAB. So omega will be V relative perpendicular divided by the separation AB. So VB sin theta B. Sir, ये minus- formula है क्या? Oh no. This is from circular motion. Circular motion. अरे हाँ, वाला sir, हाँ. Yes, sir. Formula. Yes, sir. V is R omega. तो omega is V by R. Sir, V is equal to R omega है ना, तो omega आ जाएगा R by V. हाँ. V by R. हाँ. Sorry, V by R. V by R. Sir, हाँ. here why we are only talking about sir rotation, like both the velocities, no, VA sin theta and VB sin theta, so it can displace parallelly also. But that's why you're taking relative now. So even if it's parallel, get counted in that. Yes, we are taking relative. भाई relative में क्या हो जाएगा? ये दोनों Sir, equal हो गए. relative is along the line joining them, no, but we are talking about that sin theta. But even that can be So relative, वही- no? Yeah. So right now हम जो लिख रहे हैं हम उस बॉडी पे बैठे हुए हैं एंड रादर ए पे बैठे हुए हैं एंड हम सिर्फ बी को देख रहे हैं, बॉडी को नहीं देख रहे. द बॉडी एज सच साथ में इट इज मूविंग दोनों डायरेक्शन में, बट अभी हमें सिर्फ बी को देखना है. Yes. A को रेस्ट पे रख और B के सब वेलोसिटी. Yes. A को रेस्ट पे. हाँ. Yes. So हम करेक्ट इसको
रिलेटिव मतलब रेस्ट कर देना है और इसका पूरा नेगेटिव ले जाके इस पे ऐड करेंगे तो along वाला कट जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा. When we resolve it into two directions, along the line it is the same, so it will not have any velocity in with respect to A, and the other direction, which is like the same direction of perpendicular, there it will get added directly in the same direction. करेक्ट. और क्यों डाला? ओ ये पता नहीं है कि कौन सा जो है आपका बड़ा है, VA sin थीटा A या VB sin थीटा B, मुझे पता नहीं था. So this we have to remember, no? VB sin theta minus 1. ओ ये तो आप जो है तो ये तो ओमेगा का डेफिनेशन है, ओमेगा से निकालते हैं. चलो गाइस So, ठीक है. but it would be important to know the sign of omega, na? So whether it's anti-clockwise or clockwise. हाँ क्लॉकवाइज घूम रहा है या उसके रेस्पेक्ट में जो है वो देखना होगा. So, but if we see from the other side, it will be clockwise or anti-clockwise. It will change also. नो अभी तो A के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है. No, So with sir. this- He was saying clockwise or anti-clockwise No. in this अभी case. But नहीं, if we go to the other अभी side, जो है अभी किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, A के रेस्पेक्ट में, राइट. सो A के रेस्पेक्ट में जो है ऐसा ड्रॉ किया तो ये वाली वेलोसिटी इधर आ गई. अगर VB sin थीटा भी बड़ा है तो ये इसका ये ऐसा होगा, तो इसका सेंस का मतलब कैसा हो गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन, है ना. okay, sir. हाँ चलो ठीक है. सो करेगा इस तो अभी जो है ठीक है. अभी रिजिड बॉडी में to previous slide. Yes, sir. Done. सो गाइस देखो अभी जो है हमें सो वी वांट टू इसमें हाँ मेन इक्वेशन जो आता है जैसे ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल डायनामिक्स. सो गाइस ट्रांसलेशनल डायनामिक्स का मेन इक्वेशन क्या था, सेकंड लॉ का इक्वेशन. F is equal to F m. equal to m. ठीक है. अभी गाइस ये वाला वी विल डिराइव आल्सो, रोटेशनल डायनामिक्स. इसका जो इक्वेशन आएगा, दिस इज द मेन इक्वेशन. दिस इज टॉर्क, टॉर्क. और ये जो ग्रीक, दिस इज द ग्रीक सिंबल. मतलब ये मोमेंट ऑफ फोर्स है एक्चुअली. नो 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 विल यस विल डिस्कस. अभी तो मुझे पढ़ाया नहीं है. तो ग्रीक सिंबल टॉ, दिस इज अ ग्रीक सिंबल टॉ. हाँ गाइस आई जो है These are also vectors. हाँ टॉ इज अ वेक्टर. यस आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. This is alpha is angular acceleration. ठीक है guys. So अपन कैसे पढ़ेंगे इसको? Now how will we start the chapter? तो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे guys पहले यहाँ से करेंगे angular acceleration. Then we will discuss this one. फिर then we will discuss this torque. और आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है दैट इज रोटेशनल. ये हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो अभी रुक जाओ, ये पूरा डिफाइन करना है मुझे. ओके सर. सो अब पहला जो है एंगुलर एक्सेलरेशन. यस तो ठीक है. अल्फा गाइस, व्हाट इज अल्फा? So angular acceleration. Sir, Angular acceleration. How it is Sir, defined? angular acceleration alpha है. So it can either be defined as Delta omega upon delta t. Sir, delta omega upon delta t. Okay, 1 minute. So हमने सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ रखा था Sir, delta refers to partial derivative. सर्कुलर मोशन. No, here he meant delta as in the change in. सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ा था? ओमेगा इज व्हाट? Omega is Sir, d can theta you by show d theta last by dt. page? Angular velocity. डी थीटा बाई डी टी. Into R. और अल्फा d omega by dt. dw by dt or w dw by dt. Sorry, w dw by W dt. dw by dt. Yeah, d theta. ओमेगा डी थीटा बाई डी, है ना, वी डीवी बाई डी एस. वी डीवी बाई डी एस. ठीक है.
this we have done in circular motion. और guys ये ऐसे यहाँ से इधर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? थीटा से ओमेगा Differentiate. Differentiate. ओके, फिर अल्फा Differentiate. Differentiation. एंड Integration. Integration. Integrate. The second one also integration. Omega से theta जा रहे हो तो. ओके, सो और यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए वी हैव टू पाथ्स हियर. अल्फा को क्या लिखेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी. D omega by dt. अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई. D omega by dt. और यहाँ पर यहाँ के लिए ओमेगा विल राइट एज डी थीटा बाई डी टी. वेरिएबल्स के लिए ऐसे करना होगा. फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. गाइस क्या रिजल्ट आएंगे इक्वेशंस? Sir, So omega Omega W is equal to like omega W final is initial equal to omega plus initial Omega plus initial. alpha t. Alpha t. सेकंड theta WF is equal square to is equal to omega WI initial square. time WI plus t plus alpha half half alpha alpha t square. t square. ओके एंड Omega f square minus omega Omega initial square is equal to 2 final square theta is equal to L A. initial टू square. अल्फा Yes, थीटा. alpha theta. Theta is equal to omega final plus omega initial by t. ओमेगा इनिशियल बाई 2 इनटू टाइम. Two करेक्ट time. आंसर ना? हाँ. Yes. और फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला वो भी कर सकते हैं. But Yes, theta sir. n is equal to a plus sorry u plus a by u plus means omega plus alpha by 2 2n minus 1. थीटा इज इक्वल टू हाँ ओमेगा इनिशियल प्लस plus alpha by 2 into n minus 1. 2n minus 1. v इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इनटू 2n माइनस 1 nth सेकंड वाला. करेक्ट ना गाइस? Yes. sir. ओके, सो सर v कैसे होएगा सर? वो s होएगा ना? कुछ रॉन्ग है क्या? s कौन सा? नहीं सर, s is equal to u plus a by 2 2n minus 1 अगर रहा तो, अगर वेरिएबल रहा. This is circular motion. Circular motion. हाँ, सर्कुलर के हिसाब से तो ये करेक्ट है, और वो वेरिएबल के हिसाब से वो करेक्ट होगा. ये भी What? वेरिएबल Yeah, है. this also variable. ओके ओके. ट्रांसलेशन छोड़ दे अब. Sir, So आप guys- previous slide पे जाओगे एक बार? ओके हाँ. Anytime एक you मिनट. have some variable which is a double derivative of some other variable, this is valid. और इसमें भी हाँ रेडियल एक्सेलरेशन ये पढ़ा है ना गाइस? ओमेगा स्क्वायर r हाँ सर. v स्क्वायर Yes. बाय Yes, r. sir. Yes, पढ़ा है. yes. और at is जो है dvt बाई dt r अल्फा. प्रीवियस स्लाइड. ओके, सो गाइस इसमें अभी जो एंगुलर एक्सेलरेशन का हमने जो लिखा इसमें अब HCV जो है रोटेशन में 1 मिनट आई विल गेट द HCV. Sir, आप एक बार इसके पहले वाला भी दिखाओगे? ओके 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 गाइस ये HCV बुक में जो है Done, sir. Thank you. 1 to जो है आपको करना है क्वेश्चंस. वन टू 7. So page number? पेज नंबर 195. एक्सरसाइज ये अपने सर्वर में किया होगा शायद रोटेशन का. हाँ सर, किया है, थोड़ा क्वेश्चंस किया है. वन नहीं रोटेशन चैप्टर से आई मीन पेज 1. हाँ सर, आपने कराया था. एक मिनट. HCV पेज 195 196
अब वो करना है एक्सरसाइज में जो है कहाँ से 1 to 7 हाँ सर ये किया हुआ है क्या? 1 to एक्सरसाइज में 7 1 to 7 ये वाला किया है क्या? शायद। यस सर, यस सर, सर्कुलर आपने पढ़ा हुआ कराया था हुआ कभी है हम लोग मार्क किया। में। So this is सर ठीक हमने है 1 to 4 किया था। 1 to 4 ही किया हुआ है क्या? ओके ओके हाँ नहीं सर, आपने 7 तक दिया था हम लोग। ओके ओके ठीक है. So that means this is regarding ये guys ये अल्फा वाला पार्ट जो है इस इक्वेशन जो which we are trying to study इसमें we have done in circular motion. So ठीक है यहाँ तक तो हम बढ़ सकते हैं. Now we should go for this part. So we will spend 2-3 lectures on this part. I moment of inertia. ये लो कॉपी करो सब. 1 minute guys, you copy this one. 1 minute, I'll back. So guys, this one copied now. वो इजी अगर तुमने क्वेश्चन को रीड किया अच्छे से डिकोड किया ना. Yes, please tell again. सर किसी का तो माइक अनम्यूट हो. Oh, okay. चलो ठीक है. So now mic on. Okay. चलो. Okay guys, फिर जो है next is moment of inertia. So moment of inertia I. So guys, जैसे rotation में क्या होगा? We'll have an axis. So suppose this is the axis about which the body is rotating. इसके about body घूम रहा है. Point mass is there. Say this is the point mass m. So guys, axis से perpendicular distance, huh? We'll have to find the perpendicular distance. This is r perpendicular. So moment of inertia of this point mass about this axis is defined as, so for point mass I will be equal to क्या हो जाएगा? m into r perpendicular square. r perpendicular क्या है guys वहां पर? Distance. Perpendicular distance. Perpendicular distance. AB. Yes, this is perpendicular distance from axis of rotation. This is the definition. So moment of inertia of a point mass about axis of rotation is defined as mass into perpendicular distance का square. So guys, इसका SI unit क्या होगा? Sir, can you please repeat? Oh, moment of, ML2 हाँ नहीं देखो moment of inertia ना जैसे क्या होगा? एक axis of rotation होगा और एक particle होगा.
तो हमें क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. So once we find this perpendicular distance, moment of inertia is defined as mass into perpendicular distance का square. हाँ. Okay. हाँ, तो mass into perpendicular distance. अब जो है इसका SI यूनिट क्या होगा फिर यहाँ पर? kg meter square. kg meter square. kg Okay, this is snail. हाँ, kg meter square. तो अभी के लिए guys, presently for our situation we will treat this as a scalar. हाँ, scalar की तरह हम treat करेंगे अभी. तो स्केलर की तरह उसको जो है विल ट्रीट. ओके, नाउ ये तो आ गया ना. अब जो है सर यू हैव Sir, we are taken as a scalar quantity because of a single point, sir. नो, अभी प्रेजेंट m स्टडी is scalar and r perpendicular is also is r distance है. So yeah, it's scalar, both are scalar. हाँ, तो फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर मान लो कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो गाइस कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो उन सब पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा? Integration. So we will use something like COM का Sir, formula. summation or integration. Center of mass Summation of mi ri upon Yes, mi m1 r1 square, ri m2 square. r2 square and so on. So ये कितना हो जाएगा? summation of mi ri perpendicular का square. Correct guys? Yes sir. Yes sir. Okay. So now say, So 1 minute. oh, so mass into perpendicular distance from the axis का square is moment of inertia. So guys, basically जो है हम यहाँ पर जो है torque equal to I alpha, we want to study that equation. उसके लिए एक terms पहले define कर रहे हैं, then we will derive that equation also. पहला part alpha we have studied, तो ठीक है. So Now this is like mass. It's like a mass of that one. yes, हाँ, analogous like inertia. Yes, that's why they are calling it as moment of inertia, and it is defined as Because the other one was inertial. mass into perpendicular distance का square. Yes, that is the definition. Yes, Priyal. हाँ. System of discrete particles के लिए हो गया ना? This is the system. Yes, system of discrete particles के लिए. और continuous में क्या हो जाएगा? We will discuss later on. अभी नहीं. Sir, integration. Integration. Yes. Okay. Same way guys, जैसे center of mass में approach किया था ना, वैसे ही continuous, पहले discrete फिर center, फिर continuous mass distributed systems. सर r perpendicular वेक्टर है क्या? R perpendicular is the distance, perpendicular distance. हाँ, जैसे अगर मान लो अब उस जो है say you have से कोई ले लेते हैं say object, say we have this square frame. So this is your square या triangle, कुछ भी रख सकते हैं. Suppose मान लो मैंने say square रखा, square का frame, and इस square के frame में say I have kept masses, say m, square frame, this is side is say L. These are the masses guys. हाँ, ये point masses है. This और इस ये जो है ना बीच में जो connecting rods है, they are massless rods. This square frame massless, हाँ, massless square frame. अब ये चार masses रख दिए भाई यहाँ पर A, B, C and D. A moment of inertia, अगर if I ask you to find moment of inertia, is that a complete question? No sir, axis of No rotation. sir, axis of rotation. Axis तो बताया ही नहीं है, तो चलो axis I have to tell. So now if I tell find moment of inertia, so find I about axis passing through edge. Guys, edge मतलब side ना? Yes sir. Yes sir. Okay. Edge is a side. तो side मतलब इसमें axis कैसा होगा? As it is a any symmetric. side. हाँ, oh, as it is a symmetric figure, so it doesn't matter.
ओके इसमें कोई भी साइड ले सकता है। कोई भी साइड। तो गाइस कैसा लेंगे, एक्सिस कैसा हुआ होगा यहाँ पर? नाउ डिस्क्राइब हाउ पासिंग थ्रू साइड, मतलब ऐसा ना, किसी भी एक साइड से पास होता हुआ भाई, ऐसा, राइट? Yes. Yes, sir. ओके, कोई भी एक साइड से पास करा दो। सो दिस इज द रोटेशन एक्सिस, ये बॉडी ऐसा रोटेट हो रहा है। हाँ गाइस, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम? हाँ 2 ml. पहले तो Sorry, 2 नहीं, ml square. sorry, 2 ml square. अरे ए वाले मास का क्या आएगा? A वाले का सर Zero. आएगा R 0. zero R आएगा, is 0. M A into और 0 B का square. R 0 आएगा, so B का भी B ये 0 जीरो आ आएगा. जाएगा B प्लस का भी 0 आएगा, इसका भी जीरो आ जाएगा प्लस ml square प्लस ml ml square square उसका भी ml square. plus ml square. सर प्लस ml square सर। तो 2 A ml और B का पॉइंट को आपने जीरो अज्यूम किया। Not assume the distance Assume from नहीं, the radius zero है axis ना is वो. 0, so it can't have any. Oh, yes, yes. See, the point, A wala point, M mass जो है, that is lying on the axis, so perpendicular distance from the axis will be 0. हाँ सर, परपेंडिकुलर है ना, मतलब A to B परपेंडिकुलर जा रहा है इसलिए। ओके Sir, No, but no, no, how no. do you find the A to axis, B sir? परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, A B एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उससे पॉइंट A और पॉइंट B का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। Yes, see, ये उसी एक्सिस पे सोया हुआ है, तो एक्सिस पे ही है, तो एक्सिस से डिस्टेंस तो 0 होगा ना सीमांत? यस 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 करेक्ट ना? Sir, अब So if 1 minute, sir. हाँ हाँ, क्या क्या? So 1 minute. Sir, Oh. but how do we decide the axis, sir? It is a square frame, no? It तो सब was जगह से given equal here. लेंथ होंगे, तो कोई भी साइड ले Here it सकते was हैं. अरे वो तो given, दिया है क्वेश्चन हाँ, में कि अरे the center. यस, ये वाला तो एग्जामिनर देगा ना यार, ये वाला एक्सिस पासिंग थ्रू एज, Okay, sir. दिस एग्जामिनर विल गिव यू। ये स्क्वायर था, इसके लिए हमने कोई भी साइड ले लिया. नाउ लेट्स से Sir, if one question. हाँ इसमें फ्रेम का मास हो या मास ना हो, will it affect? ओ, अगर मान लो फर्क फ्रेम का भी पड़ेगा? मास है, तो फ्रेम का मास है तो फ्रेम भी सिस्टम में आ गया, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ जाएगा ना? So we'll have to take it COM differently and do that. नो नो नो, उसका तो अपन करेंगे ना, अभी रुक जाओ, पहले तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स पे कंसंट्रेट करते हैं। हाँ, सो अभी जो है डिस्क्रीट पार्टिकल्स पे अपना कंसंट्रेशन है। So 1 minute. 1 मिनट। हाँ, अगर क्वेश्चन है फाइंड, सेम गाइस, यही क्वेश्चन, हाँ, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find I about an axis perpendicular to frame and passing through one mass, passing through any one corner, so this is the question, same question, ये m massless square frame, massless square frame, frame side is equal to L, 3 ml square. No, sorry, no. yes, ये वाला कॉपी कर लिया था ना, किसका हो Yes, गया? sir, yes, 2 sir. ml square Sir, again, I 1 think. minute. Then there'll be the hypotenuse. So yeah. Yeah. 2 ml square plus like the root Sir, of it. na. This one Tamrai copied ना? Yes, sir. Okay, so guys, axis किधर होगा यार, ये तो बताओ पहले इधर इसमें। So any कोई से भी मास पे पॉइंट किसको भी ले सकते हो। परपेंडिकुलर। Yes, this one, okay, this is a, yes सलोनी, हाँ, वैल्यूज क्या क्या आएंगी यहाँ पर? so Sir, ml 2 square ml plus square ml square plus तो root ml 2 square plus ml square plus 0 square 2 ml square 4 ml square m0 square, 4 ml square. No, it हाँ, won't be 4 It ml. won't It be will, 4. I guess it ml will. One is square diagonal. plus Diagonal ml का square length, which Root is two हाँ, M. L root Root 2. two Root M. of L root 2, so N. that will become square अरे and become 2 ml square, no?
यस सलोनी, हाँ Root 2 ये है। तो ए का आ हाँ। गया, बी का क्या आएगा? बी So it will सी be का 4. कितना आएगा? तो सी का एम एल अपॉन नहीं रूट एल अपॉन 2 पता नहीं। ml root 2 bracket square. ओके, और डी का क्या आएगा? ml square. एम एल स्क्वायर। ओके, Four ml square. ओके, दिस इज 4 ml. सॉरी बट ये रूट 12 कैसे आया? Diagonal. Pythagoras okay. theorem. This will be the perpendicular distance. Yes sir, yes I got it. So we couldn't have taken the axis horizontally. Axis You could have, this was the It is question. given perpendicular to the frame. Oh, axis is given perpendicular to the Yeah. frame. तो सर अगर वो नहीं दिया होता और खाली लिखा हुआ था passing through any one corner, then we could have. Oh, One corner मतलब Information is not perpendicular हुआ ना। complete. oh, you are saying कि तो फिर उसमें वो पिछला वाला क्वेश्चन हो गया ना। ये क्या हो गया? नहीं, you are saying कि उसमें क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, then you are saying क्या? Yeah, sir. Like if they would have written, if they would have not written perpendicular to the frame, if they would have just written passing through any one corner, then we don't know. No, it could have been like horizontally also. So then, Oh, like तो how उसमें would we do So that? but one corner means perpendicular only ना, क्योंकि वो one corner तो perpendicular ही जाएगा। अरे Not नहीं, of necessarily. course that's okay. ऐसा भी Horizontally तो भी हो तो जा सकता सकता है है। कि It can be वही प्लेन में there is the हाँ। center of there are sorry, infinite the lines passing through one axis. point. हाँ मतलब ठीक है, एग्जामिनर ओके एग्रीड, एग्जामिनर वोंट क्रिएट दैट एम्बिग्यूटी, ठीक है। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके 1 मिनट, हाँ ये वाला क्या हो गया, ऑफ क्यों हो रहा है इसमें? 1 मिनट गाइस, ये वन मिनट स्टूडेंट्स, आई विल, ये अलाउ क्लोज हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट वी आर डूइंग इज एचसीवी का 10th वाला कर रहे हैं। सर एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड। ओ प्रीवियस स्लाइड, ओके। वी का 10th वन गाइस, हाँ दिस वन डन नहीं, ये वाला? यस। ओके, सर कौन सा? दिस वन, ये वाला क्वेश्चन जो है एचसीवी का 10th वन। So guys, 1 to 9 homework, हाँ okay. So first का आंसर रॉन्ग दिया टीचर। फर्स्ट का आंसर एचसीवी का यू आर आस्किंग क्या? हाँ सर। ओके, एक बार सेकंड पार्ट, the angle rotated that is coming as 200 pi, but पीछे 400 pi दिया। So Okay. what happened, sir? I got disconnected. Oh You no, have been no, told to do this sum of HCV. so, हाँ प्रांजय, you can try, you guys, हाँ we'll discuss that thing. So 1 to 9 is a what? homework. अभी ये वाला 10th वाला ट्राई करो।
So perpendicular bisector मतलब vertical plane में या वो ruler के plane में? लाइक ये इसके पर वर्टिकल प्लेन होगा। वर्टिकल। मतलब सर एक straight draw. हाँ मतलब ये जैसे ऐसा है ना कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 So the thing will be at x equal to 50. हाँ. ये दिशा कहाँ पे होगा? ये एक्सिस यहाँ पर। लाइक दिस वन 50 पे। सर और वो मेरे को भी समझ में नहीं आता कैसे है, कैसे बाइसेक्ट किया है। ओ जैसे अपना एक स्केल ले लेते हैं और राइट दिस वन, ये स्केल जैसा हो गया, स्केल के परपेंडिकुलर। यस सर, और बाइसेक्टर मतलब बीच को। बाइसेक्टर बीच में हो जाएगा। वंश कैसे कैलकुलेट करोगे आंसर यहाँ पर? सर एम, सर सबको लेना पड़ेगा, फिर इसका एपी लेंगे। ये वाला पढ़ा हुआ है क्या, सीरीज वगैरह ये सब? ये Yes, हो sir, गया sir. क्या? इसकी सीरीज पढ़ी है, अगर ये सीरीज को डिस्टर्ब कर देता है ना, x अगर हम लोग x50 पे 0 ले लेंगे तो सीरीज डिस्टर्ब हो जाएगी। सो काव्यन कैसे फिर उसको सेट करेंगे? So now take it with respect. Like, so instead of x is equal to 1, that will be x is equal to 49, and then it will be AP again. Yes sir. You have to find the sum of AP, right? Yeah, and that side will be same on the other side. No, yes, wait, it won't. No, the mass. Yeah, the mass are Yes. different. Yeah. रियल 0 ग्राम के लिए कितना होगा? 0 into how much? 49 square. 49. अरे 0 से 50 49 square. 0 into 50 होगा। अरे Sir, 50. हाँ, yes, 0 into Sir, it is summation of the cubes, right? This is we are doing the summation of squares. ना mass into distance square का इसी वाला। Yes, Ravni, 1 के लिए कितना आएगा? So 49. 49 square. Okay. और 48 के लिए कितना आएगा? अरे डॉट डॉट डॉट। Sir, 2 square. 48 times 2 अच्छा square. 48 के लिए तो 2, हाँ. और 49 के लिए 1 square. 50 के लिए छोड़ दो। 50 के लिए तो हट गया ना? हाँ सर, 0 स्क्वायर। 50 into 0 स्क्वायर। और फिर इधर की साइकिल बताओ, 51 के लिए कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो डायरेक्ट। 51 के लिए क्या आएगा? 51 into 1 square. 51 into 1 स्क्वायर। हाँ। और 52 के लिए 52 into 2 square. 2 into 2 square. सर 50 के लिए लिख सकते हैं हम लोग 50 into 0 square. ओके, 50 into 0 स्क्वायर करेक्ट गाइस। हाँ, ये सीरीज बन जाएगा ना 100 into हाँ सर, सीरीज बन जाएगी 100 कॉमन। 90। अरे 99 के लिए क्या होगा? 99 into 49 into 49 का स्क्वायर। और यस सीमांत 100 के लिए क्या आएगा? 100 into 50 square. 100 into 50. Sir, if we take 49 square common, then we have to add the rest of the things, right? How will we take 49 common? So There are it only will two become terms with it. 99 plus 1 common 49 square, like that we have to do for everything. No, we will add the I think ones we're we have- supposed to subtract them. No, Yeah, you're right. No, add them. Yeah, you're right. 100 into 50 square and 100 All of into them will be 49 100. square Yeah. And then take 100 all of common. them will be 100. And then it will just be summation of squares. So guys, ये वाला आ रहा है ना फिर?
Yes, sir. Okay. Tanish, you're like getting this one, na Tanish? You're आ रहा है? So could you repeat आपने अभी क्या किया वो 102 50 square plus 49 square? ओ ये वाला देखो जैसे ये वाला 100 plus 0 Your voice is So your voice is 99 cracking plus very much. 100 48 plus 52 100 ओके क्रैक हो रहा है ये बेसिकली इसको सम करें प्रांजय करेक्ट प्रांजय देखो अच्छा okay so got it yeah. So it comes 100 times 50 times 51 plus 101 upon 6. n नहीं n into n plus 1 N plus 1 plus times 2n plus 1. So 101. 2n plus 1 कितना होगा 101 upon 6 6. So this is grams centimeter square. Okay, guys. Oh, ये क्या हो गया? So 1 minute. Okay. So can I just tell you last step? Oh, वो जो summation sum of squares कितना होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Yes, sir. हाँ. Okay. So guys, this one done, na? Yola. Chaitanya, understood this one? Yes, sir. चलो next करते हैं. Oh. Yes, हाँ. So I just have one doubt that like in this case also we took it as perpendicular. यहाँ पे तो काफी obvious था कि perpendicular ही लेना था पर उसके पहले हमने जो example कराया था उसमें अगर वो लोग ने perpendicular नहीं लिखा होता जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी और अगर वो horizontally जाता तो हम कैसे find करते? If they hadn't given here, then there's no way you could have been able to We do can't it. assume It's defined after you define the axis. Yes, हाँ. क्योंकि जो है first examiner has to tell कि जो है axis is vertical or is it passing through the particles ऐसा horizontal है तो ऐसा है या कैसा है they have to define. Okay. Yeah. It's not an inherent property like mass. Thank you. Okay. So continuous mass distributed arrangement या system. So उस केस में guys क्या हो जाएगा I Integral of m इंटीग्रेशन mi r square I. हाँ mi क्या हो जाएगा dm dm and r perpendicular square. So we have to find the distance as a function of mass. Yes, yes. वो तो हाँ तो ठीक है we will do अब एक एक ऑब्जेक्ट्स के लिए करते जाना है. So ठीक है पहला is uniform वही स्टार्ट कर देंगे इस वही यूजुअल ऑब्जेक्ट्स. पहला भाई सेंटर ऑफ मास में पहला कौन सा लिया था? circle, uniform disc or rod. अरे पहले रॉड लिया था ना. चलो यहाँ पे भी रॉड से करते हैं. रॉड के लिए डेटा गिवन है गाइस मास m लेंथ l. Now define this axis guys. ये वाला axis को बताओ कैसे how should I write it in syntax form, sentence form? Means perpendicular to the scale. Perpendicular to the rod. About an axis passing through end. Passing through an edge. So what was your question? Passing through the shorter edge of the rod. Oh, इसको sentence form में लिखना है. So about an axis passing through an end.
ठीक है गाइस, ये वाला एक्सिस पासिंग थ्रू एन एंड ना, परपेंडिकुलर टू रॉड ऑब्वियसली, ठीक है। यस गाइस, बताओ कैसे करें हम इसको, सॉल्व कैसे करोगे? How will you The find rod the का DM? length पहले some distance x, x DL is तो equal पहले to x मीटर So पे in that dx का there Yes, will be a yes. mass of dm, sir. so No, no, DM is yes. equal to constant times DL. No, no, yes, हाँ सलोनी, हाँ कैसे लेना है x डिस्टेंस पे dx लेके dx वाला, हाँ। So yes, तामरा, DM, how will you write DM? So we have Something to times DX. Yes, lambda. yes, sir. अरे लीनियर मास डेंसिटी लेंगे ना, lambda. M Mass by L density DX. that one that Lambda is okay. Lambda you can write. Lambda is constant here. Uniform rod. Lambda is m by L. So चलो ठीक है, इंटीग्रेट करना है. So I will be इंटीग्रल ऑफ di जो भी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स वी हैव टेकन dm into perpendicular distance का स्क्वायर. dm की जगह क्या लिखोगे? लैम्डा dx. लैम्डा की जगह m by l लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है. चलो लैम्डा dm की जगह m by l dx. What is the perpendicular distance from the axis for this small element? x x And where x का वेरिएंस है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी? 0. Zero to L. So 0 to the L. Okay, x varies from 0 to L. m by L बाहर, x square dx 0 to L. सर ये स्टेप अप रिपीट करेंगे? ओ यस यस, हाँ जैसे ये dm की जगह we are writing m by L dx. ये हो गया, dm की जगह लिख दिया ये वाला जो है m by L dx. Perpendicular distance is x, so ये x square. m by L will come out of the integration. Final answer क्या होगा? L No, cube by 3. L cube that will sorry m L square by 3, sir. ml square by 3. ml square by 3. So what do you mean by I end? Oh, moment of inertia of the ऐसी rod end के about लिखने के लिए ऐसा लिख दिया ऐसा. Okay. सर आर परपेंडिकुलर वेरी कर रहा है ना, तो फिर क्यों Yes, r perpendicular for each. Yes, each element is varying. कि It is जो X, element I guess. जो element फिर एकदम आपने एक्स स्क्वायर लिखा है ना आपने ब्रैकेट में सेकंड लास्ट स्टेप पे. हाँ ये वाला ना x square. सर हम लोग COM लेके भी कर सकते हैं ना, उसमें कुछ No. No, but COM would just give you where the center of mass is. That's not what we're trying to find. Center of लेकिन फिर mass. बाद में जैसे प्रीवियसली किया था एक मास से. Would that work? No. In this there is नहीं. square and in that there is no square, and You then cannot change the definition. You cannot change the definition. You have to use summation of mi ri square. That is how moment of inertia is defined. हाँ हर्ष, उसको definition change नहीं करना है. Summation of mi ri हम square. पूरे बॉडी का ढूंढे या COM का ढूंढे, एक ही तो बात है. No. No. Like for example, kinetic energy. Finding the kinetic energy of COM was not the kinetic energy of all points together. Now it's like that. The rest now momentum and all that was defined. We derived it from COM. It worked. Doesn't work here. Okay, sir. चलो ठीक है. So guys, what we have done. Sir, 1 minute. So like we have to use ml square by 3 directly. So Yes, moment of inertia of the rod about one end is ml square by 3. सर आप क्या बोले, प्लीज रिपीट करेंगे? हाँ, moment of inertia of the rod एक end के about ये याद रखना है ml square by 3. ओके सर. हाँ. So guys देखो अभी जो है, so what we have done, let's see what we have done. तो guys जैसे this is a plane, ये वाला plane है और ये rod ऐसा पड़ा हुआ था.
and axis, this was the axis, correct guys? ये वाला, this is the axis, इसके अबाउट आपने निकाला, करेक्ट ना गाइस? ये वाला ओके। अब जो है इसका टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा? दिस इज इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। Sir, top view only we have written last time, right? नो दैट वाज सब चीज थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो दैट वाज एन आइसोमेट्रिक। टॉप व्यू Okay, कैसा sir. दिखाई देगा? ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा गाइस? रॉड इसके ऊपर एक रॉड दिखाई देगा और परपेंडिकुलर एक And then there will be and how will this axis, how will this axis will look like? sub point. Pointing outward. Point mass, correct guys? So इसको ऐसा भी सोच, मतलब ये ऐसा ही हो गया ना, ये ऐसा, तो सर आप एक बार रिपीट करोगे? सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे लेना ना, मुझको डाउट है। ओ 1 मिनट देखो देखो 1 मिनट, इसको ये ऐसा भी सेम है ना, देखो रियल, देखो इसमें जो है ना, ये ऐसा सेम थिंग ना गाइस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, सबका सेम चीज है राइट? इसको ऐसे लिखे हैं या ऐसे ड्रॉ करें या ऐसे ड्रॉ करें, ऑल आर सेम राइट? Yes, sir. Just व्यूज आर, हाँ व्यूज आर चेंज, जस्ट डायग्राम्स अलग अलग है, एक्सिस पासिंग थ्रू सर वो सेकंड वाला along the plane में है। one end and perpendicular to rods. and because it is scalar Okay. quantity, we don't need to worry about the views being changed. Correct, huh? Correct, So, guys. but ये you वाला had said that for Sir, now ये only third it is a scalar diagram- quantity. क्या Priyal, what you're saying? सर ये थर्ड डायग्राम और फर्स्ट वाला सेम है दोनों टेबल के। हाँ देखो, ये अगर मान लो इस ये रॉड ऐसे रखा है और उसको सामने से हम देख रहे हैं, इधर से कोई देख रहा है पर्सन, so इधर से कोई पर्सन देख रहा है तो उसको ऐसे दिखाई देगा ये वाला, करेक्ट? नहीं सर, आपने जो पहला टेबल बनाया है उसमें वर्टिकल पास कर रहा है ना रॉड, दूसरे वाले में हॉरिजॉन्टल है ना, अलग है ना दोनों, वो पूछ रही हूँ मैं। But the perpendicular distance of each point at every point will be same. अगर मान लो यहाँ पर आप जो है इंटीग्रेशन ऑफ dm into x square करोगे तो वो भी वही आएगा, ml square by 3, सेम अप्रोच है ना, इसमें भी वही होगा ना, x distance dx. So, but there are two different positions. Yeah, of sir, I'm that asking system. that. Coordinate पर axis मोशन पर डिफरेंट हो लगेगा, जाएगा ना, same एक दिखता में है। हॉरिजॉन्टल हो रहा है। First वाले में perpendicular, इसमें For like in to the define the plane motion, है you ना? will need this mi and the angular acceleration. Na, we are just defining mi, right? Sorry, what was it? Inertial, Yeah, I whatever. got that, but this that the position is different, right? Position is different, but the way it's defined is the mass times the perpendicular distance squared, and that's a Yeah, scalar. that I And know. and scalars never give you the full picture of the dynamics. They just give you one portion of it. So here now the perpendicular distance in both cases will be same at each point. So that's why they are the same. करेक्ट ना? हाँ, दोनों के लिए, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा ना नैन? हाँ सर, वो समझा, मुझे खाली पोजीशन का ही पूछना था। हाँ सर, I was also asking that. ओके तनिष, क्या डाउट है? यू हैव रेज्ड अ हैंड तनिष। सर प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड, ओके। Sir, Sir, here you had said that for now only it is a scalar quantity, sir. ओ उसको आगे जो है, For now. इंजीनियरिंग में जो है टेंसर एक नया क्वांटिटी आता है गाइस, उससे पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी के लिए कुछ जरूरत नहीं है। Okay. So it actually is a scalar quantity now. इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग में ना रुचि उसको टेंसर की तरह ट्रीट करते हैं। तो अभी के लिए रहने दो, अभी जरूरत नहीं है इसमें। Sir, how we wrote that ml by dx, m by l dx. ओ लैम्डा तो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास बाय लेंथ ना? Sir, it should be half, no? Half the length. हाफ द लेंथ क्या? dm is बीच में नहीं lambda है, dx इधर भी हो and सकता है। lambda is m upon l. हाँ It's लैम्डा like तो take center of mass, no, of the rod. बीच में नहीं है, ऐसे कोई किधर भी लिया है एक्स डिस्टेंस पे।
ओके हाँ, लैम्डा जो है ना मास बाय लेंथ है. लैम्डा का मतलब होता है, वही होता है ना, टोटल मास बाय टोटल लेंथ. यस सर. यस सर. ठीक है. मीन सर यहाँ पे हम लोग ने कोई कुछ सेंटर ऑफ मास नहीं अप्लाई किया है. No, because that doesn't work to find the total like I. ओके. चलो ठीक है. So can you show the one before this? Done, sir. So if inertial mass was like the resistance to acceleration, then is like moment of inertia the resistance to angular acceleration? अभी नहीं, अभी वो सब डिस्कस नहीं करेंगे. रुक जाओ. यस, दैट मींस द सेम थिंग बट नॉट नाउ. हाँ, यूनिफॉर्म रॉड. ओके. Now you have to describe this axis. This is the rod. This is the center. ये axis है guys, इसको describe करो. Sir, L by 2. Axis of Passing symmetry. through the center, passing through the COM. Perpendicular to the rod and Passing through center of rod. Yes, sir. And perpendicular Perpendicular to the rod firstly, and then passing through the rod. So in this we have to split the integration, like we have to add the right hand side in a different. We have to do integration of right hand side and add सर the आपने इसका integration सेंटर of ऑफ left मास hand side. में सर आपने यूनिटरी मेथड दिखाया था ना. Yes. Linear mass density, correct. Tamra, yes, we are doing that one. What you suggested. Elements. Saloni, how do you take elements here? सर एक डाउट. हाँ. सर अभी आपने अभी दोनों परपेंडिकुलर तरफ रॉड DSP. लिया, और अगर यही आप सेम प्लेन ले लेते रॉड के साथ तभी भी सेम ही होता ना, सब चीज जो भी करेंगे. Oh, व्यू अपन चेंज करते हैं. रुक जाओ. No, व्यू विल no, चेंज. and वन not मिनट. this time. एक मिनट रुक जाओ ना. व्यू चेंज करेंगे ना. रुको. अभी रुको. विल चेंज दैट. पहले तो इसका कैलकुलेट करके बताओ. हाँ, क्या आएगा गाइस यहाँ पर. I will be integral of di of the elements. Elements जो है यहाँ पर पॉइंट मास है. हाँ गाइस, क्या होगा di. हाँ भाई, di की जगह क्या लिखेंगे. dm into आर परपेंडिकुलर. r perpendicular which is x only. dm की जगह m by l dx लिखेंगे और x की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस x स्क्वायर. इस वाले एलिमेंट के लिए x इक्वल टू 0, इस वाले एलिमेंट के लिए x इक्वल टू प्लस l by 2, इस वाले एलिमेंट के लिए x की वैल्यू माइनस l by 2. But sir, the minus doesn't matter, no, because it will go inside the square. ओके, लेकिन लिमिट्स क्या लिखूं बताओ. ये बताओ गाइस. माइनस 0 to L by 2. 0 to L by 2. Minus L by 2 to L L by by 2 2. to plus L by 2. Minus and part. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या रुचिर. Yes, sir. 2 times 0 to L by 2. Why? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था. सब लोग ने अभी जस्ट किया ना सर, स्केल वाला. It's perfectly symmetric. That's why. अरे देखो, इस साइड से मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर का जो समेशन आएगा ये बाजू का, वैसे ही ये बाजू का आएगा गाइस. Like the previous sum, sir. So that's why we can add that. So we can say 0 to L by 2 two times. Sir, please explain the last step. Sir, one question. अगर हमने जो बीच वाला लाइन है उसको फॉर एग्जाम्पल y एक्सिस डिफाइन किया, so one side of it is positive x axis, one side of it is negative x axis. So sir, in that case वो तो कैंसिल हो जाना चाहिए ना. हम टू टाइम्स क्यों कर रहे हैं. No, this is square. डिस्टेंस का समेशन कर रहे हैं. दिस इज स्क्वायर, तो नेगेटिव वाला ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा और वी विल देन ऐड अप. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इंडिविजुअल एंटिटीज का जो है पॉजिटिव आएगा और ऐड अप होके नेट बढ़ता ही जाएगा. इट कैन नॉट डिक्रीज और गेट 0. सब वो ऐड अप ही हो रहा है, तो आपने 2 क्यों डाला, मतलब बीच में ही आपने कैलकुलेशंस क्यों चेंज. दिशा, ये अंडरस्टूड ना. हाँ, ऐड अप होगा, कैंसिल नहीं होगा, है ना. Even if it was not anyway, it is square. It's distance ना. हर्ष जैसे नहीं, देखो हर्ष, यहाँ से यहाँ पे जैसे ये था, जैसे इधर का है ना, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, जैसे इस साइड का है वैसे ही इस साइड का है. तो हम क्या करते हैं, एक साइड का निकाल लेते हैं, उसको डबल कर लेते हैं ना यार. Sir, here won't it become 0? The answer. No, No, it won't. Why would it? Why?
It's not cancelling out, it's the Yeah, it's distance. distance. But like while solving, we will integrate and then put the value of L by 2 and minus L by 2. So like both are positive. Final minus initial, it will become 0. Again, it's We are distance. squaring it. नहीं वो गाइस उसको लेकिन कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा क्या उसको? अरे यार नहीं ना, कैलकुलेट करो ना यार, आएगा ना। देखो इसका जो है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन वो स्क्वायर है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाई 3 होगा दिनेश। Yes, sir. Yes, sir. Then sir, we will put the value. हाँ, अब वैल्यूज पुट अप करो, माइनस एल बाई 2 और ये एल बाई 2 पुट अप करो, आंसर कितना आता है बताओ? Sir, ml square by 6, sir. L cube Yes, by. sir. ml square by 6. अरे 12 आना चाहिए। Sorry, sir. 12. Sir, I'm getting Yes, sir, आ सर रहा है ml square by 12 आता है। 24 होगा ना? 12 आ रहा है, 12 2 आएगा ना? by 24 होगा। हाँ प्रियल, इसका सेकंड वाले का ये वाला भी वैसे ही आना चाहिए, 2 टाइम्स 0 to l by 2 हाँ करोगे। सर वही आता है, वही आता है। सर वो 24 होगा ना? 2 का भी क्यूब होगा ना? अरे यार इसको कैलकुलेट तो करो ना, अरे आएगा तो ना यार। 2 by 24 आएगा ना, तो 1 by 12 होगा। Sir, Yes, हाँ। sir. It does come in as 12, sir. Sorry, sir. I meant it. ओके 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 हाँ। ये सेकंड वाला आप रिपीट करें ना। सेकंड वाला ये इसका इंटीग्रेशन क्या, हाउ यू आर नहीं सेइंग? सर, इंटीग्रेशन ये वहाँ आया कैसे वो? 2 कैसे आया? ओ सी, क्योंकि जो है यू विल व्हाट यू विल डू, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स लोगे आप और सबका डीएम इंटू एक्स स्क्वायर करोगे, राइट? डिस्टेंस स्क्वायर करोगे। हाँ सर। तो वैसे डीएम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, जैसा लेफ्ट बाजू में वैसे ही राइट बाजू में हाँ, ओके सो बोथ साइड्स। एक साइड का कर लो और उसको डबल कर लो, राइट? यस सर, फिर सर माइनस एल बाई 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लाइक हमने लिमिट्स में एल बाई 2 ही लिया है ना? नो 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 नो, सी आप एक साइड का कर लो, एक साइड का निकाल लो, जितना इस साइड का होगा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर का समेशन वही इस साइड का होगा, फिर इसको डबल कर लेंगे। ओके सर, गॉट इट। सर ये ml square by 12 पूरे रॉड का आया है ना? पूरे रॉड का आया, हाँ। अबाउट द सेंटर, हाँ अबाउट सेंटर। Sir, how you got 12? यार 12 नहीं आ रहा क्या? आएगा ना? सर उसको Sir, आया कैलकुलेट 12 करने आया। बोलो। आ रहा है सर, मुझे भी आ रहा है। We got 12, like we got all that by integration. तनिष इसको इसमें वैल्यूज वाला पुट अप करो ना, 12 लिमिट्स। क्यूब बाय हाँ सर, 24 put आएगा तो किया, 2 उसके बाद ही बोल रहा हूँ सर। ओके ओके वो l cube by 8 आ जाएगा, फिर बाद में 8 2 4 कर दे, 4 3 सा 12। चलो ठीक है। अब जो है सो सी this is the plane, a rod was lying on it, और ये rod was lying on it और this was the axis। इसका टॉप व्यू क्या आएगा? टॉप व्यू में कैसा दिखेगा गाइस ये वाला? So point दिखेगा रॉड बीच में, दिखेगा और center. पॉइंट बस बीच में एल बाई 2। एक्सिस ऐसा पॉइंट दिखेगा, Yes. करेक्ट ना? सो इट्स द सेम थिंग, लाइक अगर मान लो ये दीवार है, ये हमारे घर पे जो वर्टिकल वॉल है, और मैंने क्या किया, दीवार में जो है जैसे फ्रेम वगैरह लगा रहता है, मैंने क्या किया, रॉड लिया, बीच में खीला डाल दिया। सो अब इसका रोटेशन ऐसा करा सकते हैं ना गाइस इसको? यस इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा सेंटर के अबाउट? ml स्क्वायर बाय 12 ही आएगा ना? Seems so. Sir, will it be affected by the gravity, sir? No. See, summation of m into r square we are studying now. आगे जो accelerations वगैरह कैसे होंगे, that will study in dynamics. Yeah, that So comes in अभी the सिर्फ torque हम thing. yes No, हाँ, I am अभी तो asking सिर्फ about moment of inertia, sir. Okay, no, okay. it is When I see the definition of moment of inertia, m times perpendicular distance square, is there any question of how it's moving? No, no. No. gravity का टर्म Okay. It's नहीं है ना only इसमें? about the distance, and that also at one single point in time. So it doesn't Correct. matter.
Yes, got it. Okay. So as soon as So- you define an axis, it doesn't matter how and where it is, it's always going to have the same moment of inertia. So एक्सिस यस एक्सिस अपन डिफाइन कर लेते हैं, फिर उससे अपन जो भी वैल्यू आएगा ना. नाउ अभी जैसे हमने किया गाइस, वन एंड के अबाउट कितना आया था? ml cube by 3. ml square by 3. ml square by. अब जैसे गाइस ये वाला एक्सिस रखते हैं ना, दिस इज द एक्सिस ओनली, और ये ऐसा है, रॉड जो है ना is going to move around this axis like this. अभी रॉड जो है ऐसा एंगल पे है, Conic pendulum. इट्स लाइक अ कोनिकल पेंडुलम, करेक्ट. मास m, लेंथ l. अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है गाइस. हाँ, एक्सिस इज गिवन और ये एंगल थीटा. 1 minute you try this one guys, 1 minute I'll be back. 1. Yes guys, what is the answer? So ml square sine square theta naught by 3. Very good. और सिर्फ लिमिट ही चेंज करना था. So x will remain the same, like but the perpendicular distance will become x sine theta naught at every point. So we will do integration dm x squared, and x squared will become x sine theta naught. di elements are point mass. So point mass जो है ये वाला dm into perpendicular distance. Yes. This is x sine theta naught. Yeah, correct. So this is m by l dx.
x square sin square theta naught. And x varies from, इसके लिए x equal to 0, इसके लिए x equal to L, 0 to L. Sin square theta naught. X square dx 0 to L. So ml, yes Dhruv. हाँ सर, या फिर जो हमने पहले किया था, instead of like putting x sin theta naught, सिर्फ लिमिट्स को अगर हम 0 to L sin theta naught कर दे तो फिर हो गया ना, मतलब एलिमेंट्स, लेकिन रॉड ऐसा है तो रॉड में एलिमेंट्स अलोंग द लेंथ ही लेंगे. रॉड में तो एलिमेंट्स अलोंग द लेंथ लेके फिर हमें डेफिनेशन, ऐसे कई सारे छोटे छोटे हम विल से पॉइंट masses, some point mass का perpendicular distance, right? हाँ सर. So perpendicular distance ranges from 0 to L sin theta, right? So no. So he's saying instead of taking like length direct, take the perpendicular distance at each point as your element. So then from 0 to L sin theta is saying like that. हाँ सर, और उसमें like we don't have to take x sin theta naught, उसमें हम सिर्फ x वाला ही normal x square. लेकिन रॉड को ऐसा कैसे ले सकते हैं? रॉड इज लाइक But दिस. how do you know it? You want to take rod like सर this? क्या? perpendicular distance चाहिए ना, so perpendicular distance is ranging from 0 to L sin नहीं, theta. एक्चुअली जो है मास इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड सो मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ईच पॉइंट का वैसे लेना पड़ेगा. ओके सर. चलो ठीक है. अब जो है नेक्स्ट वन. सर. हाँ. Sir, please do it. So previous slide में sin square theta क्यों लिया? Yes, Oh. sir. Wait. No, see. वो स्क्वायर आ गया, x sin थीटा का स्क्वायर किया. This At is x each, sin at theta each naught. point it will be x sin theta naught perpendicular It is distance. So sin GMR theta naught is perpendicular. Perpendicular distance. Okay, समझा. हाँ. हाँ. अब जैसे मान लो, say this is an imaginary plane, and this is an imaginary plane, और इसमें जो है this was the rod. This was the rod. Imaginary plane, guys, इसका कितना आया था moment of inertia about the center? ml square by 12. इसके about कितना आ गया था? ml square by 12. Okay. Now, say Tamra didn't like this question, and say. Sir, no, sir. I didn't say anything like that, sir. अरे sorry, just Say, Exam मैं was बोला your question. say. You didn't like. Say now. So Tamra इसने rod को bend कर दिया. He didn't like this. Straight rod था. He didn't like. He bent the rod. The rod is in this plane only, guys. हाँ, rod is in this plane, और ये angle को उसने कर दिया 60 degrees. Remember, guys, वो like एक rod को हम bend कर देते हैं उसी plane में ना यार, plane में ही है. Yes. Now same rod, same rod. It is bent to this, angle is 60 degrees. यहाँ पर moment of inertia you got as ml square by 12. यहाँ पे क्या होगा? This is center के about, okay. So there it will be 2 ml square sin square 30 by 3. No. 1 minute. देखो ये bend किया है, still it is in the plane. Sir, same ही आएगा. Same आएगा? हाँ? I'm not sure. हाँ sir. So one of them. Okay. Sir, It is क्योंकि not- अगर हम it is देखें not तो make it- basically it is- हमने उसको 2 पार्ट में किया है, and still Okay. sir like मतलब अगर Good, आप good. आधे को Perpendicular देखो distance तो is they same are only. x by 2 के ही perpendicular Yes. distance. के बीच का Correct. angle does not matter. Yes. Now So also it it will is be perpendicular to the axis, but it is making an angle with the original rod. Okay, like, because at each point is still the same perpendicular distance because it's almost like it moved at some angle. Okay, got it.
करेक्ट, ईच पॉइंट सबका जैसे जैसे ये था ना गाइस, ये वाला सी, मतलब ml²/6 होगा क्या? नो सी, जैसे यहाँ पे कैसे किया था, dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर, जैसा जो समेशन आया वही इसका भी वही आएगा, राइट? एंड सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो। सी, ये दिस इज द एक्सिस, एक्सिस का तो एंगल तो 90 है, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर, जो जिसका जितना आएगा इसका भी इतना आएगा, तो 2 टाइम्स दिस, इंटीग्रेशन से वही वैल्यू आ जाएगी, राइट? सब वो जो 2 Rotating है something doesn't change its distance ना, so that's why. सर फॉर्मूला में थीटा कुछ था नहीं ना, इसीलिए। फॉर्मूले में यहाँ पे थीटा यूज नहीं, जैसे हम बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर, जैसा इसका है वही इसका होगा, करेक्ट गाइस? It's more like each point's distance from the axis won't change So because rotating it it is same doesn't like, change the distance. so it is same like this value, जैसा इसका लेफ्ट हाफ का है वैसे ही राइट हाफ का। हाँ सर। तो वही केस आ गया ना, यही वाला केस ml²/2l वाला, राइट? सर ये नहीं समझ में आया, वापस बोलना। ओके, जैसे सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जो है, सपोज इसका कैसे निकाला था बताओ, ये वाला ml²/2l कैसे निकाला था आपने? एलिमेंट्स लिए थे, x डिस्टेंस, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स, राइट? इसका सबका, इसका समेशन किया इसका समेशन किया था, तो जैसा इसका आता है वही इसका आता है, करेक्ट? यस सर। ना, जैसे एलिमेंट्स का पैटर्न और डिस्टेंसेस जैसे Sir, but we had put वैसे the ही sign, इसका sir. है, इसलिए नेट जो वैल्यू आ गई था हमें, नहीं समझाने उसको के हमने ऐसे ही लिए कर लिया था, 2 टाइम्स 0 to l/2 dmx²। यस सर। सर समझाने के लिए आप अगर 60 डिग्री मिटा दोगे ना और बोलोगे आधे आधे पे फोकस करो, से आ जाएगा। ओके, यू वांट Set theta something. हाँ यार। ठीक है, नाउ इज दिस ओके? सो देखो गाइस, हमने सिर्फ हाफ हाफ पे फोकस करो, देखो सीखो, तो हाफ जैसा, हाफ ये जो हाफ है उसका एक्सिस और एक्सिस से डिस्टेंस वैसे ही यहाँ पे तो चेंज ही नहीं हुआ गाइस, देखो, है ना? बट सर उनके बीच में डिग्री आ गया है, उसका क्या? And if rotating, but each point still has the same distance from the axis, see na? Remember vectors na, if the unit vector might change but its magnitude will always be the same if you just rotate अरे it. वेक्टर मत बोल, डायरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं वेक्टर मत बोल। देखो सबका डिस्टेंस सेम है ना, Distance same है, we just rotated it. We didn't we didn't stretch it na, we just rotated it, so that its perpendicular distance will still be the same. Then you are understood, perpendicular distance from the axis सबका Yes, same है। sir, I understood. Okay, Tanish? Means sir your angle doesn't matter, only perpendicular distance matters. Yes. हाँ, नहीं, we are following the definition integral dm r², right? ठीक है? Sir, can you please show the solving? Sir, what if we overlap them, sir? Then the mass density will get increased. Then what will happen, sir? I think it will still be the same. नहीं, if you Exactly, it will still be the same. It doesn't matter what the angle is. Like, the way we find it is to take each point and its No, like perpendicular distance. merge them together. I mean like that. See, treat them as Will two still be the separate same. small rods. If you treat them as two separate small rods, you can calculate the value of I for each of them, and at any point you just sum the two. You'll always get the same answer. Okay. The way we find off the entire thing is to take the little things and add them up, like mass and the perpendicular distance squared. Now here, if you just rotate a part of the rod without stretching any part, are you changing the perpendicular distance? No, na. It's still going to be the exact same distance. Exactly. So can you show the previous slide for a second? So each and every point's perpendicular distance doesn't change, so their addition wouldn't change. It's like that. Harsh, you all understood now? हाँ सर, हाँ सर, इसका फीलिंग कैसे आ सकता है? नहीं, मतलब वही है कि आपका जैसे हाँ सर, मतलब इसका फॉर्मूला वाइज डेफिनेशन तो ठीक है, पर नहीं हम नहीं, फंडामेंटल्स तो देखना ही है। फंडामेंटल क्या कहता है? इंटीग्रल dm इंटू r²,
जो इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर इसका है वही इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर इसका ही आएगा, क्योंकि एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हुआ, तो तो इसलिए उसका मोमेंट ऑफ लिटरल इनर्शिया मीनिंग क्या हुआ पर? मतलब फॉर्मूला तो ठीक है। The Like literal literally meaning, just the the literal perpendicular meaning is distance. that you didn't stretch this anyway. You didn't increase the length. You just rotated No, a no, I'm part of asking it. the So, literal meaning of moment of inertia. oh, ओ आगे like आएगा we are डिस्कस going to do that, I guess. Sir said. लेटर ऑन। हाँ अभी सर नहीं, तो इतने आप जब महीने करेंगे से तब। सर इतने महीने से वेक्टर्स किया है ना, तो वो दिमाग खा रहा है। ठीक है। सो पहला गाइस दो थ्योरम्स हमें पढ़ने हैं। पहला जो है, हाँ सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे लेना। प्रीवियस स्लाइड। ओके हाँ सर मेरे को कुछ पूछना है। सर वो जो बेंट है वो दोनों अलग है ना, तो हम लोग को 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा ना, ml square by 2 plus ml square by 12. Tanish, you see the rod on the left? Yes. How will you find the moment of inertia for that? You will take each and every small point m and then take its perpendicular distance from the axis, and then you will add them all up. Now look at the one on the right. Has anything changed about the perpendicular distance? Whichever of it सर that इंस्टेड ऑफ 2 into ये लिख के आप 2 बार एडिशन लिख दो। the हाँ, addition कर will देता हूँ, still be the वही same. कर रहा हूँ। चलो ठीक है, देखो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तनिष, इज दिस ओके? Yes sir. So I is equal to I1 plus I2. Is this right? Yes sir. अब देखो एक एक इसको दो सेपरेट रॉड बोल सकते हैं, ईच ऑफ मास m/2 लेंथ l/2 बोल सकते हैं कि नहीं? Yes. अरे पूरे का मास m है ना यार, तो आधे का मास क्या होगा? m/2। Yes. और इसका लेंथ l/2 होगा, वैसे इसका भी मास m/2 लेंथ l/2 होगा। Yes. तो ये अबाउट वन एंड कितना होता है? ml²/3। Yes sir. अरे ये वाला एंड के अबाउट मास लेंथ का स्क्वायर बाई 3 होता है कि नहीं होता? यस सर होता है। तो मास लेंथ कितना हो गया? l/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। इसका भी वैसे लिखेंगे, मास लेंथ बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब यहाँ तक अंडरस्टूड? Yes. अब देखो ये आएगा पहला वाला टर्म ml²/24, ml²/24, तो ml²/24 प्लस ml²/24 ये बन जाएगा ml²/12। Okay sir. अभी समझ में आया? Yes sir. ध्रुव ये ठीक है ना एक्सप्रेशन? हाँ सर। ओके चलो गाइस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दो थ्योरम्स हमें पढ़ने हैं, हाँ, जिसका यूज करेंगे। दिस इज वैलिड फॉर एनी शेप्ड बॉडी एज पर द थ्योरम। जैसे मान लो ये बॉडी है और गाइस ये सेंटर ऑफ मास, दिस सेंटर ऑफ मास and there is an axis passing through center of mass. So this is the axis. अब इस थ्योरम में गाइस क्या इन्वॉल्व हो रहा है? पैरेलल एक्सिस, पैरेलल और एक्सिस का प्लूरल एक्सिस हो गया, तो दूसरा एक्सिस कहाँ उसके पैरेलल होना चाहिए कि नहीं? तो ठीक है, इसके पैरेलल, तो येलो के पैरेलल ये वाला ब्लू एक्सिस। से दिस पॉइंट इज P। इन पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होगा d, कुछ तो डिस्टेंस होगा पैरेलल डिस्टेंस इनके बीच का। सो गाइस ये समझ में आ रहा है ना? क्या कर रहे हैं? हमने एक बॉडी लिया, यस सर। बॉडी में दो पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किए, बॉडी में दो पैरेलल एक्सिस, एक पैरेलल एक्सिस किससे पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। दूसरा कोई सा भी ठीक है। As per the theorem, it states that I about any point P is equal to ICM plus। सर वो d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच। हाँ पैरेलल एक्सिस के बीच का, यस हाँ, दिस पैरेलल डिस्टेंस, पैरेलल एक्सिस डिस्टेंस
का स्क्वायर. So this is the theorem, guys. पहला theorem. So this is Sir, because I each and think- every point got like difference that much, na? That's why. Oh, ये theorem का proof we'll do proof for this theorem also. We'll prove it. पहले तो ये समझो ना, ये समझ में आया ना, guys, कैसे apply कैसे करना है? Sir, वो ICM क्या है? Oh, ICM is the Center of moment of mass का inertia moment. about the center of mass. Okay. Sir, what is IP? IP is the moment of inertia about any point P. जैसे अब इसका अप्लाई कर लेते हैं गाइस, जैसे अभी इसको रॉड पे अप्लाई करते हैं. कौन सा लिखना है? एक मिनट जाओ, याद ही हो जाएगा. देखो ये सेंटर ऑफ मास. अरे रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आता है यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रॉड का कितना आएगा? ml square by 12. ml square by 12. और ये एंड के अबाउट निकालना है, ये पी पॉइंट के अबाउट. तो यूज करेंगे एग्जांपल. तो क्या आएगा? Yes, sir. IP ICM प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. ICM कितना होगा इस केस में वंश? Sir, ml square by 12. ICM हो जाएगा ml square by 12. ओके. Distance is L by 2. 12 से m into L by 2 ml square by 4. तो ये पूरे का सम करो और P जो एंड वाला है ये निकाल के बताओ कितना आता है. ml square by 3. Yes, sir, ml square by 3. So this is सर ये तो हमें पहले से ही पता था ना कि ml square by 3 आएगा, क्योंकि एंड से तो वही था. We are just No, trying we to were prove it. verifying that this works. Okay. Sir, ये हाँ. ml square by 12 सेंटर ऑफ मास है. तो यूनिफॉर्म रॉड का अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ml square by 12. अभी हमने डिराइव किया था. बट सर इससे पहले मैंने पूछा था, आपने बोला ये तो कोई भी डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास नहीं है. अरे ये कब बोला? Center of mass Sir, का center वो of है. mass ही मैंने है. पूछा था Moment स्टार्टिंग. of inertia. वो अलग क्वेश्चन था, उसमें हम स्टार्टिंग से मेजर कर लेते हैं वन एंड से. बट सर ने बोला था ना कि कोई भी डिस्टेंस ले रहे हम लोग, हाँ. सेंटर का नहीं ले रहे, तो फिर हम लोग That is for ml square by 3. I mean, no, वो दो that अलग is- अलग सिचुएशन को कंफ्यूज कर रहे हैं. हाँ वो कुछ तो I mean something नहीं तनिष ना, सेंटर के अबाउट ml square by 12 नहीं होगा. हमने इंटीग्रेट करके डिराइव किया था, याद है वाला? सर नहीं, वो ये पूछ रहा है, वो एलिमेंट लेने के टाइम का वो पूछ रहा है. वो हाँ सर, जब हम लोग ने लिखा था ना लैम्बडा, तभी की बात. वो अलग है, ये अलग Lambda है. is different. वो वो सेंस में एलिमेंट पढ़ा लेने था. में किधर भी ले सकते हैं, ये तो सेंटर से ही लेना पड़ेगा ना. नहीं, वही पार्ट की बात कर रहा हूँ, तभी पूछा था. तो सर आपने बोला था ना ये वो डिस्टेंस है, ये कोई भी एलिमेंट का डिस्टेंस. जरूरी नहीं है कि वो यहाँ सेंटर पे पे लेना एलिमेंट्स है, वो नहीं ले किधर रहे हैं, भी यहाँ ले पे भाई सकते साहब हम यहाँ पे center of mass है. ओके. हाँ जैसे नहीं तो अब जैसे जो है मतलब इसका एप्लीकेशन ये है कि भाई देखो आपको सेंटर के अबाउट पता है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं ना, एंड के अबाउट. या फिर मैंने पूछा कि भाई चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस कुछ L/4 से निकालो. जैसे ये सेंटर ऑफ मास का है ना, ये ICM. अगर मैंने इसके अबाउट निकालने को बोला और इसकी दूरी बता दी, भाई चलो ठीक है ये L/4 कुछ है, तो इसके अबाउट I निकालो. मतलब क्वेश्चन अंडरस्टूड दनेश? Yes. इसके अबाउट I. इनर्शिया अबाउट डिस्टेंस है. हाँ ऐसे अबाउट. तो ऐसे हम अब इसको इंटीग्रेट कहाँ करते रहेंगे यार? मतलब ये क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 0 से इधर करना पड़ेगा, -L/4 से 3L/4 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, टाइम वेस्ट होगा. तो यहाँ पर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम मदद कर देगा, हेल्प करेगा, राइट? तनिष ये अंडरस्टूड क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे हेल्प करेगा ना अपन को. हाँ सर. सो IP पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ICM, गाइस ICM पता ही होना चाहिए तभी होगा. हाँ ICM प्लस, बिना ICM के काम नहीं चलेगा. MD स्क्वायर ICM कितना होगा यहाँ पर? इट इज ml square by ml 12. square by ml 12. square by 12. और ये वाला
ml square में 16. तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ml square by 16. नहीं 7 ml square by 48. 7 ml square by 48. Okay. So सर वो ठीक है, पीछे वाला this स्लाइड is कॉपी helpful. करना था. Oh, Yes sir, 1 minute. so moment of inertia जो है ये हेल्प करेगा. अगर सेंटर के अबाउट पता है तो किसी अदर पैरेलल एक्सिस के अबाउट ये निकालने में हमें हेल्प करेगा. ओके, सो ठीक है. ये वाला जो है, इफ यू डन once done ना ये वाला. Sir, 1 minute, sir. Yes sir. So 1 1 minute sir. ओके. सर मुझे ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन है. हाँ अभी प्रेजेंटली जो हमने रॉड ड्रॉ किया है उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा एक्सिस है वो वाई एक्सिस है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है. बट इफ इट वाज एट सम एंगल थीटा, इन दैट केस व्हाट वुड वी हैव डन? यू आर सेइंग कि जो है ये P वाला जो है ऐसा है, राइट? ओके, सर सो कैन यू यूज अ डिफरेंट मार्कर एंड शो लाइक? मतलब आपको एक्सिस इसको ऐसे करना है क्या? लाइक दिस? यस सर. तो फिर Perpendicular distance at each point would be same, though, right? हाँ, तो फिर आप ऐसे ही कर दो ना. उसको ऐसे करो दिशा, जैसे उसमें ऐसे कर, जैसे आपने किया था ना. आपको निकालना है ना, तो जैसे एक्सिस को ऐसे ही रखो और रॉड को घुमा दो. चलो ठीक है, राइट? सर अभी भी हमारा एक्सिस और रॉड परपेंडिकुलर है ना? यहाँ पर, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया, एंगल उनके बीच का एंगल थीटा चेंज कर दिया आपने, है ना? राइट? सर मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ सर. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और मैंने एक दूसरा पेन उसके परपेंडिकुलर रखा है. और अगर मैं पहले वाले पेन का एंगल चेंज कर दूं तो सर in such a way that at any point of contact with the rod the axis is not perpendicular. Yes, correct. हाँ. So what can be done in that case? हाँ, नहीं, जैसे यही हो गया ना. जैसे सपोज मान लो, सी ओके, आई विल ड्रॉ दिस सिचुएशन. जैसे आपका जो है से सी, तो जैसे आपका पहला वाला केस जो है, आई मीन सी, so this is your rod. Okay, this one, या कोई सा भी एक ले लो भाई, ठीक है. ऐसा दिस इज, ये ऐसा हो गया, राइट? सो दिस आर द टू. एक मान लो इसको एक्सिस ले लेते हैं और दूसरा वाला रॉड. करेक्ट, दिस वन. अब आप क्या कर, ये एंगल जो है 90. फिर आप क्या कर रहे हो, इसको रोटेट कर रहे हो ऐसा, राइट? इसी को रोटेट करना चाहते हो ना. तो एंगल बिटवीन आप क्या करना चाहते हो, एक्सिस और रॉड जो है 90 डिग्री होने की बजाय उसको कुछ थीटा रखना चाहते हो, राइट? सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि ना, ये वाला व्यू ड्रॉ करो. ऐसा एक्सिस को ऐसे ही रहने दो और रॉड को टिल्ट कर देते हैं ऐसा. सो नाउ सी, दिस एंगल इज चेंज टू थीटा नॉट. तो इसके लिए कितना हो जाएगा, जैसे हमने किया था ना, याद है वाला? L sin theta. अरे ये सेंटर से पास हो रहा है, तो कितना हो जाएगा इसके लिए? ml square by ml square sin square theta by 3. ml square sin हाँ square सर. ml square sin square theta by 12 हो जाएगा, करेक्ट? तो सर एक्सिस का ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर होना कंपल्सरी नहीं है. हाँ, डिस्टेंस चेंज हो गया तो फिर अब थीटा नॉट कर दिया, तो L sin थीटा नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा, तो उसको वही sin स्क्वायर थीटा नॉट वाला टर्म उसके साथ अटैच हो जाएगा. करेक्ट ना? यस सर. तो सर इन एनी केस हमारा जो रॉड है, ये कोई भी बॉडी है, एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं हो ऐसा मतलब हो सकता है, राइट? हाँ, जैसे अपन ने तो किया ही था, अपन ने एंड के अबाउट निकाला जहाँ पर कोनिकल पेंडुलम. Like, so for ICM, it always has to be, like, the axis always has to be perpendicular. Then only we can call it ICM. No, it doesn't has to be. जैसे मान लो So ये the ऐसा theorem है. still holds even if it is at an angle.
Yes, yes, Okay, yes. okay, because sin theta is okay, it's a तो और आपने constant. जो पिछला वाला एग्जांपल दिखाया उसमें बेसिकली वही वाला करेंगे ना x sin थीटा वाला, बस यहाँ Yes, पे yes. x will vary from 0 to L/2 और उसको भी ट्वाइस करेंगे, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ. अब जैसे जो है, जैसे सो इसमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एक हमें नोन कौन सा होना चाहिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. हाँ, अब ये सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए भाई, कैसे भी हो सकता है, बॉडी के परपेंडिकुलर या बॉडी के प्लेन में, कैसे भी हो सकता है. करेक्ट. अगर इसकी वैल्यू पता है तो बाकी जो है एक्सिस, अब बाकी दूसरे एक्सिस कैसे होने चाहिए, पैरेलल एक्सिस. करेक्ट गाइस, बाकी सब इसके पैरेलल होना चाहिए. तो एक का पता है तो उसके पैरेलल वालों का ही निकाल पाओगे आप. पैरेलल ऐसा, सो पैरेलल वाले. चलो ठीक है, ये मैंने कई सारे पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ. So this I am drawing a lot of parallel axes. So now of all parallel axes drawn through body, moment of inertia will be minimum about, हाँ गाइस, किसके अबाउट होगा? ICM. ICM. About an axis passing through center of mass. क्यों? So because everything else will Yeah, get its because- distance added. Yes, sir. Because distance is Because IP is I about any point is ICM plus mass into distance square. Distance would be least near the ICM. Correct. तो distance जो है guys, ये सबको समझ में आ रहा है ना, minimum होगा. So you can have a question like this. So एक question अगर मान लो दिया हुआ है, if you are given moment of inertia as a function of some x is the distance from the axis, x जो है coordinates guys. हाँ, तो आपको बताना है find position of center of mass. कैसे निकालोगे? Minimum value. So क्या करोगे, minimize करोगे ना? क्या है? Yes, sir. We'll take its Differentiate and equal to differentiation 0. and equal to 0, and its double should be negative. No, positive. Yeah, sorry, positive. जैसे मान लो एक बॉडी जो है, you like you are trying, you understood ना रुचिर क्या question I am saying? Yes, sir. You're telling to find where the position of COM is, and Yes, at that position the moment of inertia must be the minimum value. So to find the minimum value, we'll take the Correct. differentiation Single to derivative be is 0, D0. and double derivative will be positive at that point. Okay. But I didn't get it that why are we like doing the derivative here? Because if you have reached the minimum value, there's no way it can, like, to reach a minimum value means you can't go lower than that, and that means at that point the derivative There is local has to be minimum at 0. that point. Local minimum Because ना, हाँ. derivative is how something changes with something else ना. So if it can't So- change, it has to go Yeah, from being पीछे positive का to स्लाइड negative. कॉपी करना है क्या? कौन सा पीछे वाला स्लाइड? हाँ सर, कॉपी करना है क्या वो? Oh yes, yes. This is an example. Yes, हाँ. सर ये क्या है, वो दिशा ने जो आउट पूछा था वो? Oh no. ठीक है. ये वाला हाँ, ये वाला करना था. ये वाला डन ना, so we can move. चलो ठीक है, फिर जो है. One second. संतोष ने क्या पूछा था, मतलब मुझे समझा नहीं आप क्या वो बोल रहे थे, कुछ तो और लाइक साइंस का थीटा भी आया था उसमें. Oh no. थीटा वाला पूछ रही थी, जो हमने x sin थीटा वाला सम लिया था, वो वही पूछ रही थी. हाँ सर. Yes. हाँ. तो थीटा से रोटेट करेंगे तो शी वाज आस्किंग, जैसे एंड के अबाउट अपन ने किया तो सेंटर के अबाउट भी करोगे तो सेंटर से भी वैसे ही वही बस आ यहाँ पे जाएगा. 0 to L/2 लेना, फिर उसको डबल करना है पूरे रॉड के लिए.
करेक्ट, हाँ वहां पे भी वही, बस साइन वहां जैसे वहां साइन स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा था, बस एड अप हो जाता है थीटा एंगल से करने से। अदरवाइज जो हम यूजुअल लेते हैं परपेंडिकुलर में थीटा 90 आता है, तो सिंपल उसमें थीटा वाला टर्म नहीं आता है ना। नैन यू अंडरस्टूड ना? डन नहीं होना। Understood, sir. Sir, done for today, I'm asking. ओ टाइम Yes, कितना हो sir. रहा It's 9:30, sir. है? अरे यार, ओके, ये सिर्फ एक ही रॉड में पूरा टाइम ही निकल गया। हाँ चलो ठीक है, फिर होमवर्क क्या गाइस, क्या क्या करोगे? Sir, Sir, HCV HCV 1 to 1 to 9. 1 to 10 mark. और HCV 1 to 1 9. to 9. एक मिनट रुको, हाँ HCV 1 to 9, HCV एक्सरसाइज 1 to 9, इसमें सॉल्व एग्जांपल है क्या? ओके सो ठीक है, बुकलेट का भी तो कुछ कर सकते हैं ना। बुकलेट में इन चैप्टर एक्सरसाइज कहीं पे है क्या गाइस? लोकेट करो कहाँ पर है जल्दी। कहाँ से गया इन चैप्टर एक्सरसाइज गाइस? लोकेट करना जल्दी। सर इन चैप्टर एक्सरसाइज नहीं है। इन चैप्टर एक्सरसाइज नहीं है क्या? ओ चलो ठीक है, इसमें जो है फिर बुकलेट का 1 मिनट, बुकलेट में जो है एक्सरसाइज 1 में कुछ कर सकते हैं क्या? एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट Sir, before the next exercise week, sir. one, that's a exercise named that short answer, that one something. एक्सरसाइज 1 पहले करते हैं। Sir, no sir, short answer questions Sir, is there. exercise 1 के पहले कोई तो है questions to ponder करके ऐसा कुछ। Sir, no. before exercise one, short answer questions something is there, sir. ओके नो ठीक है। सो पहले आई गेस कुछ ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ओके चलो ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बुकलेट एक्सरसाइज 1 का पहला करना है, एंड बुकलेट में ही ओके बुकलेट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इट्स इन पेज कौन सा है ये वाला? पेज 33, पेज 33। और इसमें जो है कहाँ से कर सकते हैं? फ्रॉम 1 to सर मैंने आपको चैट में कुछ डाला है अभी। ओके सीमांत कहाँ से कर सकते हैं इसमें? 1 to होम नहीं, किसने मैसेज किया क्या? सम नेक्स्ट यस सर, मैंने आपको पर्सनली किया है। ओके कुछ टेस्ट आ रहा है सीमांत? सर यूटीज। ओह यूटी आ रहा है, ओके कॉलेज का यस सर। ओके सो ये ठीक है, क्वेश्चन 1 to 8 ये वाला, और एक्सरसाइज 1 का 1, और HCV जो है में 1 to 9, करेक्ट गाइस ये वाला? और इसके पहले Yes, भी sir. क्वेश्चन पॉन्डर। That is subjective questions. सब्जेक्टिव वाला ओके, ठीक है सब्जेक्टिव वाला तो है No, like conceptual questions. That's ओके कॉन्सेप्चुअल वाला, ओके विल डू दैट। ये बताओ इसका डिस्कशन कब करना है गाइस? इसका डिस्कशन सर नेक्स्ट क्लास में। डाउट लेक्चर में कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर कर सकते हैं। व्हेन इज द नेक्स्ट वन? डाउट लेक्चर आई मीन कब है? आई डोंट नो। यस किसका गाइस ये कब सर है? विद इन द वीक। सो और किसी एक दिन का बताओ ना, एक दिन का टाइम फिक्स कर लो, आज या कल, आई मीन गाइस। सर डाउट लेक्चर में एक्स्ट्रा कर क्लास लेंगे। पूछ रहे हो कि डाउट लेक्चर पूछ रहे हो? ओ नहीं, डाउट लेक्चर तो अपना इस वीक नहीं है ना, सिर्फ लेक्चर और ही है सर शायद। सारे एग्जांपल रॉड रिलेटेड ही है ना। थर्सडे को ही है अभी। लेक्चर डायरेक्ट लेक्चर ही है ना देन? डाउट लेक्चर सर आपका फ्राइडे को है। और डाउट लेक्चर तो एक भी नहीं है ना, डाउट लेक्चर कहाँ है? डाउट लेक्चर नहीं है आपका। यस सो विल हैव तो एक्स्ट्रा एक कर लेते हैं ना, डाउट लेक्चर तो है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा किसी ये छोटा डिस्कशन करने के लिए आई गेस हाफ एन आवर में हो जाएगा ये डिस्कशन। सर वेडनेसडे को। ओके वेडनेसडे व्हाट टाइम? सर वेडनेसडे हम लोग का 8:45 से कॉलेज है, 8:45 से 2। ओके गाइस सर क्लास में कर लो ना, अभी ऐसे भी यूटी आ रहा है।
ओ यार ये लोग ज्यादा ज्यादा डाउट पूछेंगे तो फिर मेरे को टाइम लगेगा ना क्लास में सॉल्व करने, क्लास का टाइम जाएगा। पर ये थोड़ा ही होगा सर कैसे? एक्स्ट्रा क्लास ले लो ना थोड़ा सर। ही सर होगा कल ही यार। रख लो, हम लोग आगे सर करेंगे। कल ले लो। सर नहीं सर कल ले लो अच्छा है। ओके टुमारो व्हाट टाइम? बस सेम टाइम। अरे आधे घंटे में हो जाएगा भाई, आधे घंटे में हो सर जाएगा ना। 4:30 को ले लो। ओके आधे घंटे में हो जाएगा ना भाई, 4:30 से। ओके 4:30 टू 4:30 to 5:30 रख लो। ओके 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 ठीक है, चलो नहीं ठीक है, 4:30 to 5:30 डिस्कशन आधे घंटे। गाइस मुझे रखने तो आधा घंटे में हो जाएगा ये वाला। ओके गाइस चलो फिर। Sir, Okay, sir. sir, in UT2 you won't give any homework, right? Because our UT2 is also coming. Oh, this While is the homework. no, This is sir, the homework. while UT2 is going on, you won't give any homework, right? Yes sir. Okay 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 मिलेगा okay. मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, सर। सबको मिलेगा, लाइन में आ जाओ। चलो ठीक है गाइस। ये इस बार का टेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ क्या? फिजिक्स का मतलब सॉल्व नहीं हो पाया क्या? यू आर नॉट एबल टू सॉल्व? Yes, सेकंड sir, पेपर it बहुत was इजी very था। difficult, सर sir. सेकंड वाला बहुत डिफिकल्ट था। Sir, सेकंड first वाला वाला इजी भी था था। सर पूरा। नहीं आई मीन मैकेनिक्स का क्वेश्चंस बने क्या उसमें? टफ था क्या? हाँ सर, सब हाँ जे सर, एडवांस 2021 से सर 3-4 2020 के कंसेप्ट आए एक थे। साथ थे। ओके आई मीन मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे क्या उसमें? No, हो sir. रहे हो थे। रहे थे सब, बट बहुत डिफिकल्ट थे, लाइक टाइम कंज्यूमिंग थे बहुत। ओके ठीक Sir, है तो and मुझे प्रीवियस also a टाइम lot था of questions sometimes. I feel like that. For क्वेश्चंस for the given time, it is the questions is greater. ओ टाइम हाँ सर, मेंस के एग्जाम में तो ये बहुत लगता है। Yes. ओके ठीक है गाइस चलो। सर ओके आपने यस जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था बेंट ऑब्जेक्ट का, वो L/2 किया था, लेकिन अगर वो मतलब इक्वल नहीं है दोनों लेंथ, तो फिर भी सेम ही होगा क्या? no then it will be different. We have to some तो पैरेलल तो Then उसको it will be at a different point ना। यस तो डिफरेंट पॉइंट है तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे, तो अपन को अलग अलग निकालना पड़ेगा दोनों का। तो सर मैं क्या सोच रहा था, जितना वो गाइस जिसका इक्वल हो गया पार्ट दे है कैन ना लीव फॉर द क्लास। हां दे कैन लीव सर, फॉर द नेक्स्ट जितना क्लास। पार्ट इक्वल है ना, मतलब हाँ शॉर्टेस्ट पाथ उसको 2 ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसका अलग एडिशन करेंगे, वैसा करेंगे क्या? नो नहीं देखो, अगर मान लो तुम्हें ना सपोज जो है suppose you are saying the bend happens at Ruchir bend happens at so तो Ruchir what are you 3L/2 saying? हाँ तो bend happens at say this is L/4 and this is 3L/4. So Ruchir how will you calculate this one? इसको We I1 बोल can दो। take that ICM, so the distance from अरे ICM. ICM क्यों? I1 Sir, plus we have I2 कर to दो। Yeah, we use, can do that as well. sir, और we have to sum up, no? मास एंड के अबाउट कितना होता है? मास लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 and see the mass of one will be m/4, length of one will be l/4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और सेकंड वाले के लिए क्या होगा? मास विल बी 3m/4, लेंथ विल बी 3l/4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। सर आपने इंटीग्रेशन भी कर दिया? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, मतलब कंटीन्यूअस बॉडी नहीं है, तो अच्छा हाँ हाँ इंटीग्रेशन की। ये वाला नहीं, दो अलग अलग कर लिए ना यार इसको। गाइस ये समझ हाँ में आता है सर। ना? इसको यहाँ इसको एक रॉड बोल दिया 1 वाला l/4 को, दूसरे वाले को ये समझ में आ रहा है ना? ये ऐसा सर कर ये लिया। 3 कैसे आया? 3/3? हम लोग ने डिराइव किया था अरे ना। वो रॉड है ना जिसके लिए उसके एंड के थ्रू एक्सेस पास कर रहा है, तो वो ml²/3 होता है ना। नहीं ये And 3 अगर नहीं समझ में आया। N से ml²/3 होता है। अगर लिमिट 0 to L है तो ml²/3 है। तो अगर अभी लेंथ L/4 या 3L/4 है तो अबाउट वन एंड तो अपन ने डिराइव किया था ना यार, ये वाला। हाँ सर। देखो अबाउट वन एंड हमने लिखा था ना तनिष, स्टार्टिंग में पहला वाला वही था। सर वो तो 12 आया था ना, ml²/12। ml²/3 था वो फॉर्मूले। सेंटर के लिए था। यार सेंटर के लिए था ना यार वो वाला। देखो ये वाला हाँ एंड का ml²/3 था ना यार। सर ये एंड समझ में नहीं आया मेरे को। देखो ये वाला जो है
एंड का कैसा होगा, ये पार्टिकल्स ले लिए छोटे छोटे, तो हाँ अब इसका dm इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ तक अंडरस्टूड ये वाला। यस सर। तो dm को लिखेंगे m by l dx, ये वाला तो समझ में आया है ना, r परपेंडिकुलर तो x ही हो जाएगा, है ना। हाँ सर। और एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से l तक। हाँ सर, मतलब फुल लेंथ ना, 0 से L। हाँ, बिकॉज ये पूरा का पूरा देखो इस साइड ही है पूरा का पूरा रॉड, हाँ सो सर। इसलिए 0 to l हो गया, है ना। यस। अब सेंटर के अबाउट जो आया था वो ml² by 12 आया था, करेक्ट। सेंटर के अबाउट, हाँ सर। सेंटर के अबाउट इधर जो है 0 से l by 2, इधर से ऐसे है, तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो है जैसे मैंने बताया ना कि इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, i is i1 plus i2 करके, हाँ सर। हाँ सर। और दोनों एंड बना दो, तो m by 2 बोला करके बताया था ना, l² by 3। हाँ सर। हाँ, और ये भी वैसे ही हो जाएगा m by 2 ओके l² सर, by तो 3। वो एंड टू एंड था। हाँ, एंड का जो है ml² by 3, सेंटर के अबाउट नेट जो आता है देखो सेंटर के अबाउट वो हाँ सर। ml² by 12 आता है ना। हाँ सर। सर अभी हाँ, सर एक बार 18 स्लाइड में जाना, एक डाउट है। एक मिनट इसको 10th वाला चाहिए, मैं 10th वाला, ये वाला, यस हाँ, यस मैं इसमें कुछ डाउट है क्या, स्लाइड क्वेश्चन नंबर 10th, मैं यू हैव अ डाउट हियर, Sir, ये just वाला। wanted a screenshot. ओके ओके ओके, हाँ यस, राघव तुम्हारा कौन सा डाउट था। अरे 18th वाले में जाओ ना। 18th वाला, यस हाँ, यस राघव, हाँ बताओ व्हाट इज द डाउट। अच्छा, इसमें फाइंड पोजीशन ऑफ ICOM में कि क्या लिखा है सर आपने। ओ नहीं, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालेंगे, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसको इसका डेरिवेटिव ले लो, मिनिमा हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और 0 से इक्वेट कर देंगे डिफरेंशिएट करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ना। हाँ हाँ सर, देखता हूँ। ओके ओके, सो गाइस ठीक है, फिर आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय ऑल। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.